Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Entrepreneurship class 11th unit 1st. Azkis yat topicus manz karo as discuss entrepreneurship mutliq. Godnikis unitus chu syllabus yus JNK bosnu prescribe kormut chu. Ath manz chu as parun concept of entrepreneurship, meaning and definition and characteristics, and functions and need of entrepreneurship, role of entrepreneurship in economic development, barriers to entrepreneurship, economic and technological barriers. Yat topicus manz karo as discuss yus azuk session chu azkis sessionus manz karo as discuss concept, meaning, definition and characteristics of entrepreneurship. Im alav karo as role of entrepreneurship in economic development discuss. Business yotai zan taluk chu asan, business chu economic activity asan. Economic activity carry out karne khatar chu ekis insanas special knowledge or special skill require asan. Keh prat kah kaam karne khatar gasan keh specific skills ekis insanas andar asin. Yim ability ya tam attributes gasan ekis insanas andar asin. Use ability ya using tam attributes emis insanas ye activity karnas manz ye activity carry out karnas manz madad karn. Kyunki business yus asan chu ye chu ak special activity asan, im khatar te gasan keh special skills or keh special attributes ekis insanas andar asin yim sait su business plan manage ya direct hek karit ya control hek karit. Entrepreneurship yotai zan is taluk yotai zan entrepreneurship taluk chu, entrepreneurship is gadis define karan chu us chu wanan entrepreneurship hasa chu attributes set of attributes asan yus ekis entrepreneurs yani yus ekis business start karn veles maz asan chu और pat chu su tamai activities ya tamai attributes practice maz istemal karan business start to business run karne khatar. In other words, business start to business run karne khatar yim business establish ya business run karne khatar yim specific set of attributes ekis nafaras lagan. Tamai set of attributes tamne set of attributes is wanan ki yasa ge entrepreneurship. In other words, winto tui ki entrepreneurship hasa chu asan taman attributen taman practicean taman techniquean taman processan chis wanan entrepreneurship yim ekis insanas business establish or business run karnas man darkar evan. The word has been derived from the French word which means to undertake. The concept of entrepreneurship can be best expressed as a set of attributes an entrepreneur possesses and practices the same to establish and run the business. Business run ya business start karnas maz yim set of attributes yim techniques yim skills darkar asan chu taman skillan chis wanan yasa go entrepreneurship. Misal ke taur par entrepreneur yus asan chu ish pani business start karan emis chu ath maz pons lagan ye pons manage karun te entrepreneurship ye pons pat sahi istemal karun entrepreneurship ath sahi raw material hun sahi business location determine karin sahi pat cheez manage karin sahi pat planning karin organizing karin directing karin controlling karin cheez manage karin ath sare skills asan sare techniques asan sarven skill and technique is wanan kul milake ki hasa entrepreneurship techniques entrepreneurship skills asan. Prat kans insanas man chun entrepreneurship skills asan ken tawai gas astai wushmut ki variya businessman yim business start karan chu tum chun hekan survive variya skalas kerit ken tikazi timin man chun sare entrepreneurship qualities या entrepreneur attributes तिमन सारवेन मज आसान कहें इसलिए तम तमाम attributes गसन एक इंसानस मज आसिन यम दरकार आसन business मज और यम business इमस establish और बे सारे खुद अहम छु यम पत business run असल पॉइंट systematically तो completely यम इमस पत business run करनस मज मदद देन. It is the ability and the willingness an entrepreneur to exploit business opportunities by bringing together various factors of production, that is land, labor, capital, in order to make profit. It is the process of designing, launching and running a business. Since entrepreneurship is an evolving concept, ath definitions change gasan variya ath differently are defined karan yata tuhin bachan hindi khatar esi ke kath skip karan entrepreneurship kes baras man इसलिए युस एस entrepreneurship concept छु बच वनान विकनस यतत सो छु तिमसिन खतर यह याद थावन कि युस बिजनेस आसान इस बिजनेस स्टार्ट करान छु at business start karun chun hang ta mangai ka kaam asan ke im khatar chu ke special skills require asan
अमि खतर अख स्पेशल प्रोसेस आसान युस स्पेशल प्रोसेस आसान छ यम सत अख इंसान बिजनेस स्टार्ट करान छ और अख इंसान कुन जायन का अपॉर्चुनिटी वुछान छ कि फलान जायन हसा छ फलान चीज दरकार और तम पत तम फलान चीज के एतबार सह कह बिजनेस अपॉर्चुनिटी पन्निस जहनस मज आनान और तम पत तम बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुंद फायदे तुलान और पत प्रॉफिट कमावन। यही एक मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व हो जाता है यमी मैकेनिज्म सह बिजनेस अपॉर्चुनिटी एसेस करान छ यम मैकेनिज्म सह पत तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यकजा करान और पत कह बिजनेस स्टार्ट करान और पत सह बिजनेस रन करान। अत मज युस यह एबिलिटी युस यह मैकेनिज्म अथ मैकेनिज्मस वन यह एंटरप्रेन्योरशिप मैकेनिज्म आसान चूँकि यह मैकेनिज्म वारियाहो नावो सत जानने यवान इट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप अत वनान अत एडवेंचरिज्म ते वनान अत रिस्क टेकिंग ते वनान अत थ्रिल सीकिंग ते वनान अत इनोवेशन ते वनान। तो ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो मेनली जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो एक एंटरप्रेन्योर को पजेस करने चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए और फिर वही सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस को इस्टेब्लिश और एक बिजनेस को रन करने में। तो अगर हम ये इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक पर्सन है इसको एक इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करनी है बनानी है तो जो जिस प्रोसेस से ये गुजरेगा जिस प्रोसेस से ये बंदा गुजरेगा ताकि एक एंटरप्रेन्योर या इंटरप्राइज जो है वो वजूद में आ जाए उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस कहते हैं। तो दीज वर द थिंग्स ये जो है ये कंसेप्ट था और मीनिंग जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट और एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग जो है वो हमने आपके सामने रखी। इसके बाद डेफिनेशन है बहुत सारे ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है। एक ऑथर है जिसको हम पीटर एफ ड्रकर कहते हैं और इसने डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नीदर आर्ट नॉर साइंस इट इज़ प्रैक्टिस। जो भी बिजनेस इस्टेब्लिश और बिजनेस रन करने में जो प्रैक्टिकली हम काम करते हैं उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। प्रैक्टिकली जो जिस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं प्रैक्टिकली जिस तरह से हम चीज़ों को प्लान करते हैं प्रैक्टिकली जिस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं डायरेक्ट करते हैं कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं इन सारी चीज़ों को जो है जो हम रिस्क लेते हैं इनोवेशन जो हम करते हैं जो हम रिस्क बियर करते हैं जो हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यकजा करते हैं ताकि हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर सकें तो उन सारी चीज़ों को जो प्रैक्टिकली जो हम चीज़ें करते हैं उन्हीं को यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर ने एंटरप्रेन्योरशिप कहा है। ये आर्ट नहीं है ये साइंस नहीं है इट इज जस्ट प्रैक्टिस इट इज जस्ट द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी आर डूइंग व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एंड रनिंग द बिजनेस। देन जगनूप सिंह है इसने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डज। तो कंक्लूड जब हम करेंगे तो हम यही करेंगे कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ साइकिल ऑफ एक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट एंड रन ए न्यू एंटरप्राइज। एक नई एंटरप्राइज को स्टार्ट और इसको फिर रन करने के लिए जो एक्शंस रिक्वायर जो एक्शंस एक एंटरप्रेन्योर करता है उन्हीं तमाम एक्शंस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यू एंटरप्राइज यही भी हम कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली बात जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी जो कैरी आउट की जाती है ये प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो लिवलीहुड अर्न करने के लिए कैरी आउट की जाती है। इसी तरह से ये भी हम इसी वजह से करते हैं। दूसरा जो इसका है वो ये है कि ये इंटरप्राइज क्रिएटिंग एंड रनिंग एबिलिटी है क्योंकि हमने यही कहा कि अभी कि ये एक नई इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश और एक नई इंटरप्राइज को रन करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स दरकार होते हैं वही एबिलिटी उसी एबिलिटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहेंगे तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से इंटरप्राइज क्रिएट हो जाती है और इंटरप्राइज रन इसी वजह से हो जाती है। ये इस एबिलिटी को जिस एबिलिटी से हम एक इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करते हैं एक इंटरप्राइज को रन करते हैं उस एबिलिटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। देन द इनोवेशन इट इन्वॉल्व्स इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक इनोवेशन है एक नया काम एक नई बात जो 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 मतलब युस सारे वक्त अलग आए अथी वनान इनोवेशन वनान कह नो आइडिया
कहाँ नव थिंग. Entrepreneurship is a creative process. It requires innovation in every function of the business, such as product designing, manufacturing, distribution, promotion. It requires innovation in each and every field. न कुछ नया करने के लिए ट्रेडिशनल जो है हमारा अप्रोच है बिजनेस करने का, उस ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के कोई नया काम करने को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक इनोवेशन है कि इसमें इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं या होते हैं. तो ये रिस्क बेयरिंग है. बिजनेस जो है वी कैन सेपरेट बिजनेस फ्रॉम द रिस्क. जो है बिजनेस में चूँकि अनसर्टेनिटी है अबाउट प्रॉफिट्स एंड कंडीशंस, तो इसकी वजह से इसमें रिस्क हमेशा हो जाता है. इसी तरीके से चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है. तो ये रिस्क बेयरिंग एपिटाइट होता है. रिस्क बेयरिंग एपिटाइट हमें हर इंसान में नहीं होता है. जिस बंदे में रिस्क बेयरिंग का जो मादा है वो होता है, वही अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की सलाहियत रखता है. अगर किसी नफरस ये वहम खबर म्यून पूस गोल, तो उसको हम कहते हैं कि अमिस मज एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी कहें, तिकाज अमिस रिस्क बेयरिंग एपिटाइट अमिस कहें. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स अ high risk and uncertainty. Every decision or action has a long-lasting and significant impact on the performance of the business. Additionally, there is always a chance of failure of the venture, wherein the entrepreneur has to bear a financial loss. तो फाइनेंशियल लॉस हमेशा इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो हालात की वजह से हो या किसी और वजह से हो. तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो हमेशा रहता है. तो इसी वजह से एक एंटरप्रेन्योर में जो है रिस्क बेयरिंग एपिटाइट होना चाहिए और इसमें रिस्क इन्वॉल्व हमेशा होता है. इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. ये एक मकसद के लिए कैरी आउट की जाती है. एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी जो है ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, एक खास मकसद खतर. खास मकसद अत मज हमेशा प्रॉफिट कमाउन, कुछ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन आसान, या कुछ साथ आसान ये सोशल वेलफेयर या इकनॉमिक डेवलपमेंट हेकि पर्पज ٲسِتھ कहाँ ते इकनॉमिक एक्टिविटी या कहाँ ते एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कैरी आउट करनस. Entrepreneurial activities are undertaken for a specific purpose. The purpose varies from different organizations. It can be profit, customer satisfaction, social welfare, and economic development. There can be various motives or purposes for which an economic activity is carried out. Entrepreneurship is management. जिस तरह से हमने पहले भी कहा, it implies bringing various factors of production together. It involves other managerial functions like planning, decision making, and controlling, etc. Now, what is the role of एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ है. एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में एक कंट्री के लिए. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है एनुअल एग्ज़ाम में कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है एक कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में. सोशल डेवलपमेंट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट हम उस डेवलपमेंट को कहते हैं जो सोशल सेक्टर या जो सोशल साइड में दिखे कि लूकन हुन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ियामुत, लूकन हाई क्वालिटी गुड्स मिलान, बाकी तमाम चीज़ इन अत वनो कि लूकन इन खतर सोशल एक्टिविटीज़, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने. तो इन एक्टिविटीज़ को हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहते हैं. अगर इस एंटरप्रेन्योरशिप आसान, इस बिजनेस आसान, चूँकि इन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आसान. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी तहत ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली वारियाह सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ कैरिड आउट करान, यम कि वजह से सोशल डेवलपमेंट ते गसान. क्या रोल एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप क्या रोल सोशल डेवलपमेंटस में, सो वो social significance of entrepreneurship. And entrepreneur plays an important role in the social development and social welfare of a country in the following ways. First, creates jobs for the country. चूँकि यतत employment वारिया unemployment आस, job requirements तैत आसान, यम लक्ष्य organizations आसान च. इंडियास मंज च सारे खोत ज़्यादा employment share इमने माइक्रो मीडियम तो स्मॉल एंटरप्राइजन हुन आसान. यम लक्ष्य enterprises आसान च, चूँकि इमन मंज छन मशीन इस्तेमाल गसान कि यम हाईली यम टेक्नोलॉजिकल यम एक्सेसरीज आसान या यम हाई टेक्नोलॉजी हाई टेक मशीन्स आसान, चूँकि इन मज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आसान, इसलिए हेकान एफर्ड ऐसा बज मशीन इस्तेमाल एफर्ड करित की, इसलिए मैनुअल लेबर आसान ज़्यादा इस्तेमाल करान. तम की वजह से गसान कि ज़्यादा लेबर कंज्यूम करान और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हेकान दित. तो ये जो है स्मॉल स्केल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये मीडियम
जो जिनको जिनको हम माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस कहते हैं, ये माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस जो हैं ये जॉब्स क्रिएट करते हैं एक कंट्री के लिए, जिसकी वजह से जो है सोशल लिविंग जो है वो आसान हो जाती है लोगों को, लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोगों को जॉब मिलता है और वो अपनी फैमिली और अपना जो है वो अपनी सोसाइटी को चला सकते हैं। देन द सेकंड थिंग इज़ इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी। जो जिस कम्युनिटी में जॉब ज़्यादा हो उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ या जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी करती हैं, उन एक्टिविटी की वजह से भी सोशल स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का बढ़ता है और लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल डेवलपमेंट में काम करती हैं। यम सोसाइटीज़ आसान सोसाइटी मं काम तम आसान यम इम्पोर्टेंट थावान अगर तम एक्टिविटीज़ कैरी आउट इन करना, तो बिज़नेस जो है वो कभी कभार जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके वो जो है वो उन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी तहत कुछ साथ कह बिल्डिंग बनावान या कह हस्पताल बनावान, या मिसाल के तौर पर इस पे J&K मज करो कत, J&K बैंक पन्निस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी तहत इकबाल पार्क अगर तुम बूझमुत या बादाम वोर सह तमुक केयर टेकर ये वनो इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट तमुक J&K बैंक करान, या तुम वुचमुत J&K बैंक एम्बुलेंस या J&K बैंक तम हस्पताल मज तुम वुचमुत व्हील चेयर्स। दीज एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों का जो है लोगों को फ़ायदा मिलता है और लोगों की डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल इस तरह से अदा कर सकता है और अदा करता है। मेकिंग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीज़ों को अवेलेबल करना। हम ये सोचते हैं या ये समझान कि ये दुकानदार ये बिहत ये दुकानदार पन्ने पोस कमाने खतर अत बिहत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये ज़रूरी है कि उस नफर बिजनेस स्टार्ट करान यह प्रॉफिट कमाने खतर करान, लेकिन यह एहसास इंसानस आसन कि यह दूर पे चीज़ अनित मे चीज़ पन्निस नियर मतलब मेनिस दरवाजस तामत वात मे चीज़ अवेलेबल थावान। मिसाल के तौर पर कुछ जायन दुदच वारिया ज़्यादा ज़रूरत आसान, तो क्या हो जाता है कि कह नफर वथान यह स्टार्ट करान दुध दुकान या डायरी स्टार्ट करान, इस ये लोकल सोसाइटी आसान अंद पकि सोसाइटी इमन दुध अवेलेबल गसान नज़दीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वरना इनको बहुत दूर जाना पड़ता ये दूध आने खतर या बाकी चीज़ करने खतर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे ये भी एक सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस का, इन छोटे छोटे जो है इन छोटे छोटे इदारों का। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू सर्विस टू द कस्टमर। मिसाल के तौर पर कुछ जान कह डॉक्टर सब भी नज़दीक लोकलस मज बिहत और यह पेशेंट वुचान बजाय इसके कि इंसान वात शहरस मज, तो उससे तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में ये छोटी छोटी जो है बिजनेस इंटरप्राइज जो है वो काम अदा करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और सोशल स्टेबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीजनस कुछ कंट्री डिफरेंट रीजनस, मिसाल के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर अत 3 डिफरेंट रीजनस यम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस आसान। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस लोकल लेवल पे काम करान, लोकल रॉ मटेरियल, लोकल लेबर, लोकल मशीनरी इस्तेमाल करान और इमन जायन पन लोकल यूनिट स्टार्ट करान। इनकी वजह से क्या अक्सी पर्टिकुलर एरियास या पर्टिकुलर गामस फायदे वातान। लार्ज स्केल बिजनेस आसान तुम कुछ शहरस मन बड़ यूनिट खोलान, तथ मन ज़्यादा लेबर जरूरत पेवान की, इसलिए इस गई मिसाल के तौर पर लद्दाख वाल पन्ने एतबार बिजनेस यूनिट स्टार्ट करान, श्रीनगर वाल या कश्मीर वाल पन्ने एतबार बिजनेस यूनिट स्टार्ट करान, इथे पे जम्मू वाल करान पन्ने एतबार बिजनेस। तो ये जो छोटे छोटे इदारे हैं या ये जो छोटी छोटी बिजनेस यूनिट्स हैं इनकी वजह से बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो जाती है। तो हर रीजन अपने हिसाब से डेवलप होगा और हर रीजन की अपनी हिसाब से डेवलपमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से सारे रीजन जो है वो यूनिफॉर्मली डेवलप हो जाएंगे या बैलेंसड डेवलपमेंट उनमें हो जाएगी। और इसी तरह से सोशल स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने देखा होगा कि माइग्रेशन आसान लूकन माइग्रेशन गसान गाँव गसान शहरस मज काम करने खतर, तो वो जो एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है लोगों की वो दूर हो जाती है ये लोकल यूनिट्स जो है वो स्टार्ट करने से।
कि लोकल लेवल पे गई कुछ जान कस मिलाव मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल बिजनस कह लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि नरेगा एग्जाम्पल लोकल लेवल पे लूकन काम मिलान और तुम ये कायम दह करान तिमन पे शहर गई जरूरत या बाकी स्टीम कुन तिमन पे नेरन जरूरत की। तो लोकल लेवल पे उससे क्या है कि सोशल स्टेबिलिटी जो है माइग्रेशन एक शहर पे बेक शहर गसनुक गाम पे शहर यथ वन शहर गसन रीत काम खतर या बाकी चीज़न खतर वो भी इन यूनिट्स से जो है कम हो जाती है। नाउ द इकनॉमिक सिग्निफिकेंस दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इकनॉमिकली कित पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकनॉमिकली कित पार्ट एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप कित पार्ट एक कंट्री हंदिस इकनॉमिक डेवलपमेंटस मज काम करान। यह गژھِ याद थावन यथ कंट्री मज स्मॉल स्केल स्मॉल मीडियम तो माइक्रो लेवल हंद MSMEs वन माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस यथ कंट्रीज मज ज़्यादा तथ कंट्री मज इकनॉमिक डेवलपमेंट वारिया ज़्यादा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि तिकाज तथ कंट्री मज इकनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा यथ कंट्री मज स्मॉल तो मीडियम तो माइक्रो यूनिट्स ज़्यादा तिकाज एंटरप्रेन्योर्स these bears risk that is involved in the business जिसकी वजह से जो है ये अपने कंट्री की इकनॉमिक डेवलपमेंट जो भी अगर बिजनेस एक्टिविटी आस नहीं तो इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। लेकिन इकनॉमिक जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए जो है रिस्क बियरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो जो बंदा रिस्क बियर करता है वही वही बिजनेस इस्टेब्लिश करता है और अल्टीमेटली वही जो है अपनी कंट्री के इकनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोगों के पास हैं पैसा जो लोगों के पास पड़ा है वो ये लोग इकट्ठा करके अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उनके पैसे पे भी ये इंटरेस्ट देके उनका पैसा भी जो है उनके पैसे को भी डबल करते हैं और अपना जो है अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्स को मोबिलाइज ये लोग करते हैं कैपिटल जिसको हम कहते हैं। तो नेशनल इनकम में भी इनका बड़ा जो है इम्पोर्टेंस रहता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये जनरेट करते हैं जिस तरह से हमने पहले ही कहा। तो इसकी वजह से भी कंट्री की इकनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है। इसके अलावा वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अनयूटिलाइज्ड रह सकते थे या जिनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो उनको भी यूटिलाइज़ करने के वास्ते इस तरह से फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है। जो अनटैप्ड रिसोर्स जिनको हम कहते हैं इन अनटैप्ड रिसोर्स को ये खोज कर उनको इस काम में लाते हैं। तो उसकी वजह से जो है जो ये इकनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं या प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो हैं उनको काम में लाके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको काम में लाके ये कंट्री के इकनॉमिक डेवलपमेंट में काम देते हैं या काम आते हैं अपना रोल अदा करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरह से एक्सपोर्ट में ये मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज जो हैं या ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है किस तरह से एक्सपोर्ट्स में जो है अपना योगदान देते हैं। एक वक्त में इंडिया में एक पॉलिसी थी कि युस चीज़ यीत्या यथ इम्पोर्ट वनान इम्पोर्ट करन वनान या एक्सपोर्ट करन इम्पोर्ट्स पे थोड़ा बैन इंडिया मज थोड़ा वक्त खतर और तम पत अगर कंसे इम्पोर्ट करन आसे तमिस तमी एतबार पेवान एक्सपोर्ट ते करन। तो आपने देखा होगा जो ये एक्सपोर्ट जोन्स बनाए फिर इंडिया ने यानी वनान कशर जबान मज वनान कि यम हसा गई यूनिट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स आसान इंडस्ट्रियल स्टेट्स यथ वनान। तो तमन इंडस्ट्रियल स्टेट यम आसान तिमन जायन बने वारिया यूनिट यम खाली पत एक्सपोर्ट बढ़ावान कंट्री मुल्कों। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट में या अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में इसी वजह से जो है जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है एक कंट्री का जो है वो बढ़ेगा नेशनल इनकम जो है लोगों की बढ़ेगी उसी की वजह से जो है ह्यूमन इंडेक्स जो है वो बढ़ता है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो है इन एंटरप्रेन्योर की वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है। जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं या जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं ये जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से जो है एक कंट्री की सोशली और एक कंट्री की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने अब तक डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या गो एंटरप्रेन्योरशिप को कंसेप्ट क्या आसान और बे पूर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप अमे अलावा पूर सोशल या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
कुन सात छु पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि कह कंसेप्ट या कह चीज़ उस आसान छु यह इंसान स्किप करान कह डिलिबरेटली या कुन सात छु टू एयर एज ह्यूमन। तो यह गलती कुन सात गसान अगर कंस ते बच्चस कुन ते सात कह ते कन्फ्यूजन आस या कंस ते वुचन वलिस कह कन्फ्यूजन आस सह हेक डायरेक्टली रबित अस कर। तो यहाँ तक जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू वेरी मच।